نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہم نے 12ویں پارے کا خلاصہ پڑھنا ہے۔ اس پارے میں سورہ ہود ہے۔ سورہ ہود کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، اس کا مفہوم ہے۔ سورہ ہود اور اس کے ساتھ کچھ اور صورتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کسی نے کہا کہ آپ کے بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، تو ابھی آپ کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے سورہ ہود اور ان کے ساتھ ایک دو اور صورتیں ہیں، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو اس صورت کے موضوعات ایسے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر مند کرتے تھے۔ تو جو آدمی فکر میں رہتا ہے، جو آدمی ٹینشن میں رہتا ہے، غور و فکر میں رہتا ہے، وہ آدمی بوڑھا جلدی ہو جاتا ہے۔ اس کے بال بوڑھا جلد سے مراد کیا ہے کہ اس کے بال وغیرہ جلدی سفید ہو جاتے ہیں، بڑھاپے کے آثار جلدی نمایاں ہو جاتے ہیں۔ تو اس صورت کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے مجھے بوڑھا کیا۔ تو اس میں ایسی کیا بات تھی؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ ہود، آپ جانتے ہیں، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ ایک نبی کا نام ہے جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے، اور یہ ان انبیاء میں سے ہیں۔ یہ قوم عاد ان عرب قوموں میں سے ہے جنہیں بائدہ کہا جاتا ہے۔ بائدہ، عرب بائدہ کہا جاتا ہے، یعنی پرانی۔ ہم کہتے ہیں نا کوئی چیز پرانی ہو جائے، ہم کہتے ہیں بادی ہو گئی ہے، تو بائدہ اس سے نکلا ہے۔ عرب بائدہ یعنی پرانی عرب قومیں، جن کا صرف نام معلوم ہے، جن کی تاریخ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا تھے کیسے، سوائے اتنی تاریخ کے جو قرآن نے ہمیں بتائی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا تھے، کون تھے، کیسے تھے، ان کی تاریخ کیا تھی، ہمیں نہیں معلوم۔ ٹھیک ہے، تو یہ پرانی عرب قومیں جو عرب کے علاقے میں رہی ہیں، تو ان میں سے ایک قوم تھی قوم ہود۔ قوم عاد، اس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا گیا تھا۔ تو یہ ان کے نام سے موسوم یہ صورت ہے۔ اس کی 123 آیات ہیں صورت کی، اور اس میں 10 رکوع ہیں، اور یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں کی یہ خصوصیات ہوتی ہیں، کوئی بھی مکی صورت ہو اس میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اس میں عقائد کا ذکر ہوتا ہے، توحید کا، یا آخرت کے عقیدے کا، اور پھر عقیدہ رسالت کا۔ اب جو مدنی صورت ہے، مدینہ میں تو ظاہر ہے جو مقابلہ تھا وہ اہل کتاب سے تھا نا، یہودیوں سے زیادہ تھا۔ تو یہودی تو پہلے ہی رسالت کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، انہیں رسالت اور آخرت کی عقیدہ سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو مدنی صورتوں میں ہمیں یہ چیزیں کم ملتی ہیں، مکی میں زیادہ ملتی ہیں، کیونکہ مکی صورتوں میں جو انٹریکشن تھا وہ زیادہ مشرکین سے تھا، کفار سے تھا۔ تو انہیں توحید کا، آخرت کا، اور پھر گزشتہ قوموں کے واقعات بھی مکی صورتوں میں سکھائے گئے تھے، مکی صورتوں میں ہی بتائے گئے ہیں جو گزشتہ قوموں کے واقعات ہیں، کیونکہ وہ مشرکوں کو بتانے کی ضرورت تھی، اہل کتاب کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، جو کہ خود ہی ان قوموں سے تعلق رکھتے تھے جو گزشتہ قومیں تھیں، یا وہ جو جانتے، وہ پہلے سے ہی جانتے تھے۔ اہل ایمان کے لیے ہدایات ہیں اس میں، اور نافرمانوں کے لیے اس میں کچھ وعیدیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس صورت کے اہم موضوعات ہیں، اور اس صورت کے زیادہ تر موضوعات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کو دوبارہ ہم نہیں دیکھیں گے، کیونکہ ہمارے ان سیشنز کا مطلب پورے قرآن کا خلاصہ، اس کا ایک اوور ویو لینا ہے کہ قرآن میں کیا کیا باتیں کی گئی ہیں۔ تو جو چیز ایک دفعہ ہمیں پتہ چل گئی ہے، دوبارہ ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے۔ اس لیے آج ہماری یہ کلاس مختصر ہوگی بہت زیادہ، امید ہے کہ ایک سیشن کے اندر اندر ہی ختم ہو جائے گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔
आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई भी ज़मीन में कोई भी जानवर ऐसा नहीं है, जो भी जितने भी जानवर हैं उन सब का जो रिस्क है ना वो अल्लाह के ज़िम्मे है। हर जानवर का रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे है। तो जब रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे है, आप देखें कि हम अपनी सारी ज़िंदगी रिस्क के पीछे दौड़ते हुए गुजार देते हैं। रिस्क हासिल करें, किस तरह कमाएं, किस तरह रोज़गार कमाएं, किस तरह अपनी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करें। हम सारी ज़िंदगी इसी के पीछे, हम पढ़ते भी इसीलिए हैं, तालीम भी इसीलिए हासिल करते हैं, हुनर भी इसीलिए सीखते हैं, फिर सारी ज़िंदगी कमाई करते हैं, और फिर एक एक के बजाय दो दो तीन तीन नौकरियां करते हैं, नौकरियों के साथ कारोबार करते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं रिस्क कमाने के लिए। जबकि अल्लाह ताला का क्या वादा है कि ज़मीन में हर एक जानदार का रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे है। अल्लाह ने उसे जब तक ज़मीन पे ज़िंदा रखना है, वो उसको, उसके लिए उसका रिस्क जो है ना वो अल्लाह ताला ने लिख दिया है कि कितना रिस्क वो लेके जाएगा। तो हमें अपने रिस्क के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें उस अपने रिस्क के पीछे नहीं लगना चाहिए, इतना ज़्यादा कि रिस्क के पीछे लगना हमें राज़िक से ही गाफिल कर दे, हमें अल्लाह ताला से ही गाफिल कर दे। हम इतना रिस्क कमाने के पीछे लगे हों कि हमें नमाज ही छूट जाए, हमारी नमाज ही छूट जाए। हम इतना रिस्क के पीछे लगे हों कि हम अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का काम ही छोड़ दें। ठीक है। तो एक रवायत में आता है कि इंसान के मुकद्दर में अल्लाह ताला ने जो रिस्क लिख दिया है वो इसे मिल के ही रहेगा। अगर इंसान भागता है ना अपने रिस्क से, अपने रिज्क से अगर इंसान भागता है तो रिज्क इंसान के पीछे पीछे भागेगा। इंसान अपने रिज्क से पीछा नहीं छुड़ा सकता। जो जो रिज्क इंसान के जिम्मे लिखा है वो उसे मिल के ही रहना है। अगर इंसान अपने रिस्क से खुद भागता है ना तो इंसान का रिस्क उसके पीछे पीछे भागता है। तो जितना रिस्क अल्लाह ने लिखा है वो मिलना ही मिलना है। हाँ, अब ये एक बात है कि वो रिस्क मिलना ही मिलना है, तो उसको किस तरीके से हासिल करना है, किस जरिए से हासिल करना है, इसमें उन लोगों के लिए भी एक सबक है, एक तसल्ली है कि जो आजकल के दौर में हलाल तरीके से जिनकी जिनकी नौकरियां जो हैं वो हलाल की नहीं है, जिनके रोज़ी हलाल की नहीं है। मिसाल के तौर पे बैंक की जो मुलाजमत है, अक्सर लोग जो इस्लामिक बैंक की नहीं, उसके अलावा जो दूसरे आम बैंक हैं उनकी मुलाजमत को उलमा जायज़ नहीं करार देते, उनकी आमदनी को जायज़ नहीं करार देते। तो उनका एक बहुत बड़ा बहाना उन लोगों का यही होता है कि हम ये नौकरी नहीं करेंगे तो हम कमाएंगे कहाँ, हम खाएंगे क्या, हम तो मजबूर हो जाएंगे, हम तो मांगने पे मजबूर हो जाएंगे, तो हम क्या करें, और कोई ज़रिया नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए इस आयत में एक बड़ी तसल्ली है, इस रवायत में जो मैंने बयान की है कि देखें जो रिस्क अल्लाह ने आपके ज़िम्मे लिखा है वो आपको मिल के रहना है। अब वो रिस्क चाहे आप हलाल तरीके से कमाएं, चाहे आप हराम तरीके से कमाएं, आप ज़रिया किस चीज़ को बनाते हैं। आप अगर हराम तरीके से कमाना छोड़ देंगे तो अल्लाह ने तो क्या आपको रिस्क कम कर देना है? नहीं, अल्लाह तो रिस्क कम नहीं करेंगे, अल्लाह ताला ने तो उतना ही रिस्क आपको देना है। तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपके लिए हलाल तरीके से रिस्क कमाने का ज़रिया पैदा करेंगे, और अल्लाह ताला आपको मायूस नहीं करेंगे। तो जिन लोगों की आमदनी या कमाई हराम तरीके से है उनको इस बात की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। हाँ, इंतहाई मजबूरी की हालत में जब तक कोई और ज़रिया नहीं पैदा होता, आप बेशक वो जारी रखें, लेकिन जैसे ही कोई मौका मिले, और हमेशा इस कोशिश में रहें कि किस तरह उस रोज़गार को, ऐसी नौकरी को छोड़ें जो जायज़ नहीं है। इसके बाद है जी ज़मीन और आसमान की तख्लीक के मुतल्लिक ज़िक्र है कि 6 दिन में ज़मीन और आसमान को तख्लीक किया गया। हुवल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, 6 दिन में तख्लीक किया। वकान अर्शुहु अलल मा, और अल्लाह का अर्श पानी पर था। अब ये एक ऐसी आयत है जो हमने तीसरे पारे में पढ़ा था ना, कि कुछ आयत हैं जो मुहकम हैं, जो बिल्कुल वाज़े क्लियर कट हैं, जो 2+2 = 4 की तरह हैं,
वो आयत मुहकम होती हैं। कुछ आयत ऐसी हैं जो मुतशाबे आयत हैं, जिनके मानी वाज़े नहीं होते, और उनके मानी के पीछे पढ़ के लोग गुमराह हो सकते हैं। और जो लोग वर्रासिखून फिल इल्म, जो लोग इस इल्म के माहिर हैं, उसमें एक्सपर्टीज़ रखते हैं, उनके अलावा लोगों को इस पे गौर व फिक्र करने की ज़रूरत, इजाज़त भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। और जो कि गौर व फिक्र करेगा वो हमेशा वो किसी गुमराही में ज़रूर पड़ेगा। तो ये उन आयत में से है कि अल्लाह का अर्श पानी पर था। पानी, जब अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को तख्लीक किया तो अल्लाह का अर्श पानी पर था। तो ये पानी उस वक्त क्या था क्या नहीं था, कहाँ पे था, ये इस बारे में हम नहीं समझ सकते, हमारी हमारी अकल से मावरा ये चीज़ है। लेकिन एक चीज़ इसमें बहुत अहम है, वो ये कि पानी को बहुत क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है इस ज़मीन और आसमान की तख्लीक में और इस ज़िंदगी की तख्लीक में। इसीलिए एक और जगह पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने हर चीज़ को पानी से तख्लीक किया। हमने हर चीज़ को पानी से तख्लीक किया। और देखिए, आप जानते होंगे कि साइंस भी ये कहती है कि ज़िंदगी की इब्तदा जो है, इस ज़मीन पे ज़िंदगी की इब्तदा पानी से हुई है। पानी के अंदर हुई ज़िंदगी की इब्तदा। तो अल्लाह ताला भी कहते हैं कि हमने हर चीज़ को पानी से तख्लीक किया। वकान अर्शुहु अलल मा, जब अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को बनाया तो एक पानी मौजूद था। बहरहाल इनका जो सही मतलब है, सही मानी क्या है, वो हम नहीं समझ सकते। और ये बात एक और जहन में रखिए कि ऐसी जो भी आयत होती हैं, उनको, उनके पीछे लग जाना, उनका मानी निकालने की कोशिश करते रहना और इसे में ज़िंदगी खपा देना, ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। क्योंकि इसके, इन आयत पर हमारी हिदायत का दारो मदार नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर इन आयत का मतलब हमें समझ नहीं लगेगा तो हम हिदायत नहीं पा सकेंगे, हम कामयाब नहीं हो सकेंगे, आखिरत में हमारी फलाह नहीं हो सकेगी। तो इन आयत पे हमारी कामयाबी का दारोमदार नहीं होता। जिस चीज़ पे हमारी कामयाबी का दारोमदार है, अल्लाह ताला ने वो बहुत ही क्लियर अंदाज में, बहुत ही साफ अंदाज में बता दिए। उसमें हमें बिल्कुल गौर व फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि हम पढ़ते जाते हैं तो हमारी समझ में बात आ जाती है। आप देखें, आप कह, अल्लाह ताला कह रहे हैं कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। हर नबी क्या दावत लेके आए थे? या कौम याबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, अल्लाह की इबादत करो, इसके अलावा तुम्हारा कोई इलाह नहीं है। तो बहुत ही क्लियर बात है। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। ठीक है। वमा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन। देखें कितनी क्लियर बात है कि हमने आपको खातमन नबिय्यीन बना के भेजा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो जिन चीज़ों पे हमारी हिदायत का दारोमदार है, वो बिल्कुल क्लियर कट बयान की गई हैं, वो मुतशाबे नहीं हैं। जो मुतशाबे हैं उन पे हमारी हिदायत का दारोमदार नहीं है। ठीक है। तो इंसान की कम ज़रफ़ी पर अल्लाह ताला ने शिकवा किया है कि जब इंसान को कोई तकलीफ़ आती है, कोई मुसीबत, कोई परेशानी आती है, तो इंसान क्या करता है कि वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है, और वो अल्लाह ताला उसकी मदद करते हैं। और जब वो उस परेशानी से निकल जाता है तो वो क्या करता है, वो नाफरमानी करता है, नाशुक्रा बन जाता है, अपने आप पे इतराता है। वो समझता है कि ये मैंने ही सारा कुछ किया है, मैंने फला ये कुछ किया और मेरी परेशानी दूर हो गई। तो वो अल्लाह ताला की रहमतों को, उसके अताओं को भूल जाता है। तो ये इंसान ने, अल्लाह ताला ने इंसान की कम ज़रफ़ी का यहाँ पे ज़िक्र किया है। इसके बाद मुशरिकीन के एतराज़ात, और उन एतराज़ात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रद्द अमल, और उसके बदले में, और अल्लाह ताला ने आपको जो तसल्लियाँ दी, इसका हम पहले ज़िक्र कर चुके हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अल्लाह ताला बार बार ये कहते हैं कि वमा अलैका इल्लल बलाग, वमा अलैका इल्लल बलाग, ए नबी, आप पर तो सिर्फ पहुंचाना है। आपका काम, आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ इन लोगों तक मेरा पैगाम पहुंचा देना है, इनको हिदायत देना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। आप अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने
देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत को कैसे बयान किया है कि फ़लअल्लका तारिकुम बअद मा यूहा इलैका वज़ाइकुम बिही सदरुक, और तुम्हारा सीना घुटता है उनकी उनके ईमान न लाने पे। फलअल्लक तारिकुम बादा मा यूहा इलैक, तो ऐसे महसूस होता है कि तुम इनके पीछे, इनके इन एतराज़ात के पीछे, इनके इन मुतालबात के पीछे आप हमारी वही का कोई हिस्सा तर्क न कर दें, उसको छोड़ न दें, और आपका सीना जो है वो उनकी इन बातों से घुटता है, और आप ये चाहते हैं कि इनके इनके ये एतराज़ात मान लिए जाएं। इनके यहाँ पे कौन कौन से एतराज़ात बयान किए गए हैं? अन यकूलू लौला उन्जिला अलैहि कंज, वो लोग कहते हैं कि इस पे कोई खजाना क्यों नहीं नाजिल होता, कोई माल और दौलत क्यों नहीं नाजिल होता। तो एक एतराज़ जो मुशरिकीन मक्का ने किया था, बल्कि मुतालबा जो किया था, वो कहा था कि आप अगर अल्लाह के नबी हैं तो अल्लाह ताला से कहें कि ये जो दो पहाड़ हैं, शायद सफ़ा और मरवा के बारे में कहा था कि अल्लाह ताला इन्हें सोने सोने में तब्दील कर दे। तो इस तरह की एक इस तरह का भी मुतालबा किया गया था। तो लौला उनजिला अलैहि कंज, इन पे कोई ख़जाना क्यों नहीं नाजिल होता। औ जा माहु मलक, और अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो आपके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं है, कोई आपका बॉडी गार्ड होता, कोई फरिश्ता होता आपके साथ, तो ऐसा क्यों नहीं है। तो आप इन्नमा अंत नज़ीर, अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि आप सिर्फ खबरदार करने वाले हैं, आप सिर्फ इनको आगाह करने आए हैं कि इनका काम जो इनके साथ पेश आने वाला है, जिस चीज़ से ये गाफिल हैं उस चीज़ से आपको बस आगाह करने, आपका काम है उनको आगाह कर देना। बाकी उस पर अमल करें या ना करें, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं, ये उनकी जिम्मेदारी है। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत से लगाओ, ये पहले ये ग़ालिबन पिछले पारे का है। नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया गया यहाँ पे, जो हम पहले पढ़ चुके हैं सारा। इसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। इसमें एक आयत है जो पहले उसका सिर्फ हमने तर्जमा तो पढ़ लिया था। वकील या अर्दुबलाई माकी वया समाउ अक़लियाई, के जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे अल्लाह का अज़ाब आया, सैलाब की सूरत में, पानी की सूरत में, ज़मीन पानी उबलने लगी, आसमान से पानी बरसने लगा, और वो लोग जो कश्ती में सवार थे उनको छोड़ के बाकी सारे लोग जो है वो ज़मीन में डूब गए। इसे द ग्रेट फ्लड कहा जाता है, और आज तक पूरी दुनिया में इसके आसार मिलते हैं। हम कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमारे मैदानी इलाके जहाँ पे आजकल हम ज़राअत करते हैं, या किसी ऊंचे पहाड़ी इलाके पे भी चले जाते हैं, तो वहाँ पे चट्टानें ऐसे महसूस होती हैं कि जैसे समंदर के नीचे की चट्टानें होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि तह दर तह वो चट्टानें लगी होती हैं, ऐसी चट्टानें समुंदर के नीचे होती हैं। तो ये पहाड़ों के ऊपर ये चट्टानें कहाँ से आईं, कैसे आईं? तो साइंसदान ये कहते हैं कि ये शायद उसी सैलाब का असर था जो नूह अलैहिस्सलाम के दौर में आया था, जिसने पूरी दुनिया को एक दफ़ा पानी के नीचे डबो दिया था, पूरी जो जितनी भी खुश्की थी उसको। तो शायद ये उसका नतीजा है कि ये चट्टानें, समुद्री चट्टानें हमें जा बजा नज़र आती हैं। बहरहाल उसके बाद जब ये पानी उतरा है, अल्लाह ताला ने इसको हुक्म दिया, तो वो जो आयत है ना, वकील या अर्दुबलाई माकी, ये मैं यहाँ से देखता हूँ, शायद नज़र आ जाए। कौन सी आयत है? 22 से 49 नंबर तक आयत है। हाँ जी, ये आयत आ गई आपको, अगर ये मुसहफ नज़र आ रहा है तो इसमें वो ये आयत है। इस आयत में, ये आयत बहुत ही इस आयत में बहुत से मोजज़े पोशीदा हैं। एक तो इसमें अरबी लुगत के एतबार से, अरबी ग्रामर के एतबार से बहुत ज़्यादा इसमें कवायद हैं। आपने वो वाक़या सुना होगा कि बहुत से लोगों ने जब जब अल्लाह ताला ने ये चैलेंज दिया ना कि इस जैसी कोई एक सूरत बना के ला दो, इस जैसी कोई एक आयत बना के ले आओ, इस जैसी 10 आयात या 10 सूरतें, कोई इस तरह की बात, ये शायद इसी पारे में ही आएगी, वो बना के ला दो।
अगर तुम समझते हो कि ये इंसान का कलाम है तो तुम भी इस जैसा कलाम बना के दिखा दो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। तो बहुत से लोगों ने, ऐसा नहीं है कि किसी आदमी ने इसकी कोशिश ही नहीं की, बहुत से लोगों ने कोशिश की। एक गालिबन एक यहूदी था, वो अरबी का बहुत माहिर था, अरबी दान था। और उसको ये काम सौंपा गया कि तुम कुरान जैसी कोई एक सूरत बना के दिखा दो, बना के लाओ। तुम्हारा और कोई काम नहीं है, तुम जितने पैसे कहोगे, जितनी तनख्वाह कहोगे तुम्हें मिलेगी, तुम्हारी जो ज़रूरत होगी हम पूरी करेंगे। तुम्हारा बस एक ही काम है, तुम कुरान जैसी कोई एक सूरत बना के दिखा दो। तो कहते हैं कि वो बड़ा ही अरसा वो अपने घर में वो बंद रहा, एक ही काम करता रहा। वो बस लिखता लिखता, और फिर कुछ समझ ना आती तो वो कागज़ फाड़ के फेंक देता। कितने कलम उसने ज़ाया किए, कितने कागज़ ज़ाया किए। बिलाखिर जब उसने ये आयत पढ़ी, वकील या अर्दुबलाई मा की ओ या समा वक़्लिई वग़ीज़ल मा, ये आयत जब उसने पढ़ी, क्योंकि अब वो अरबी समझता था, तो वो अपने कलम तोड़ के बाहर निकला चीखता हुआ कि उसने कहा कि बाकी हर चीज़ ठीक है, लेकिन इस एक आयत का मैं ना ना जवाब मैं लिख सकता हूँ, ना इस पूरी ज़मीन पे कोई और आदमी लिख सकता है। तो इस आयत में अरबी ग्रामर के अलावा साइंसी हकायक भी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे ये जो दो अल्फाज हैं ना, चार अल्फाज हैं, वकीला या अर्दो अर्दुबलाई मा की, ये चार नहीं बल्कि पांच छह अल्फाज हैं। या अर्दुबलाई मा की वया समाउ अक्लियाई, ये पांच अल्फाज हैं। या अर्दो इबलाई मा की वया समाउ अक्लियाई। इसका तर्जुमा है कि ए ज़मीन अपना पानी निगल जा, ठीक है, वापस वापस ले ले। और ए आसमान थम जा। अब देखें इसमें, इस इन पांच अल्फाज में अल्लाह ताला ने पूरा वाटर साइकिल बयान किया है। जो जो हम अपने पढ़ते हैं सिलेबस की किताबों में, बेसिक साइंस की किताबों में, वाटर साइकिल। तो अल्लाह ताला ने इन पांच अल्फाज में उसको उसका इशारा दे दिया है। देखें, अल्लाह ताला ने ज़मीन को ये कहा कि अपना पानी निकल जा, ठीक है, अपना पानी निकल जा। लेकिन आसमान को ये नहीं कहा कि तुम अपना पानी रोक लो। क्यों? क्योंकि आसमान का तो पानी अपना है ही नहीं, पानी तो ज़मीन का है, ठीक है, पानी ज़मीन का है, ज़मीन से ही आसमान पे जाता है। तो आसमान को ये नहीं कहा कि अपना पानी रोक लो, बल्कि ज़मीन को कहा कि अपना पानी रोक लो। इसका मतलब है कि पानी असल ज़मीन में है, और आसमान पे जो पानी जाता है वो ज़मीन से जाता है। तो ये उसका उसकी बेस, उस वाटर साइकिल की जो बेसिक प्रिंसिपल है, वो यहाँ पे बयान किया गया। तो बहरहाल ये इसमें एक छोटा सा इशारा मैं आपको देना चाहता था, बाकी ये वाकया हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये उसमें चीज़ें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बयान हुई हैं यहाँ पे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब देखें, ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सूरह हूद ने मुझे बूढ़ा कर दिया। गुज़िश्ता उम्मतों के वाक़यात, गुज़िश्ता उम्मतों के बारे में सोच सोच के कि उन्होंने किस तरह अल्लाह की नाफरमानी की थी, और अल्लाह ने कैसे अजाब भेजा था, और उनकी उस कौम की नस्ल को तबाह करके रख दिया था, उनकी जड़ को काट के रख दिया था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी उम्मत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, हद से ज़्यादा मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि अल्लाह ताला की बार बार तसल्लियों के बावजूद आपको तसल्ली नहीं होती थी, और अपनी उम्मत की हर वक्त अपनी उम्मत को बचाने के लिए जहन्नम से लगे रहते थे। तो आयत में आता है कि आप जब खड़े होते रातों को क़ियामुल लैल में, तो आपके सीने से इस तरह आवाज़ आती थी जैसे हांडी उबल रही हो। यानी गम से आपका सीना उबल रहा होता था कि मेरी उम्मत किसी तरह जहन्नम में जाने से बच जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा एक रवायत में फरमाया जिसका मफहूम ये है कि तुम लोग आग की तरफ भागे जा रहे हो, आग के गड्ढे में छलांगे लगा रहे हो, भागे जा रहे हो आग की तरफ,
اور मैं तुम्हारी कमर से पकड़ पकड़ के तुम्हें उससे दूर कर रहा हूँ, तुम्हें उससे हटा रहा हूँ कि आग आग के अंदर न छलांग लगाओ। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के बारे में इतना ज़्यादा फिक्रमंद थे। और दुनिया में भी थे और आखिरत में भी अपनी उम्मत के बारे में फ़िक्रमंद रहेंगे, और अपनी उम्मत को इंशाल्लाह बख्शवाएंगे, अपनी उम्मत के बारे के लिए सिफारिश करेंगे। तो हमें भी उम्मीद है अल्लाह ताला हम सब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात, आपकी सिफारिश नसीब फरमाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और कौम लूत का वाक़या भी मैं बड़ी तफसील से आपको सुना चुका हूँ। शुएब अलैहिस्सलाम का तज़किरा भी पहले आ चुका है। बदनसीब कौन और खुश नसीब कौन, फैसला आखिरत में होगा। ये आयत नंबर 105 से 9 है। देखते हैं इन आयत में क्या बात की गई है। यौम यअति ला तकल्लमु नफ्सुन इल्ला बिइज़्निह। देखिए ये फिर वही बात की गई है। वो दिन जब कोई आदमी, कोई कोई ज़ात, कोई बंदा अल्लाह के हुक्म के बगैर बोल नहीं सकेगा। फमिनहुम शक़िय्युम व सईद, उनमें कोई लोग खुश होंगे और कोई लोग गमज़दा होंगे। फ़अम्मल्लज़ीना शक़ू फ़फ़िन्नार, जो लोग गमज़दा होंगे वो जहन्नम में जाएंगे और वो हमेशा उसमें रहेंगे। और खालिदीन फ़ीहा, जब तो ये बात इसमें खुलासा इसका ये है कि कि कामयाबी और नाकामी का दारोमदार इस दुनिया पे नहीं है। कामयाबी और नाकामी का दारोमदार आखिरत पे है। जो आदमी आखिरत में निजात पा गया, दुनिया में चाहे जितना भी वो गरीब हो, दुनिया में चाहे जितना भी वो कमज़ोर हो, दुनिया में चाहे जितना भी वो मजलूम हो, चाहे वो बेरोज़गार हो, चाहे उसके पास खाने के लिए दो वक्त की रोटी ना हो, तो दुनिया में उसका फैसला नहीं होगा। आखिरत में जो कामयाब हो गया, जो जन्नत में चला गया, दरअसल वही कामयाब है। और दुनिया में माल और दौलत भी हो, दुनिया में औलाद भी हो, में अल्लाह ताला ने हर आसाइश भी दी हो, दुनिया में अल्लाह ताला ने बेहतरीन रोज़गार भी दिया हो, अल्लाह ताला ने ओहदा भी दिया हो, जाहो जलाल भी दिया हो, लेकिन आखिरत में अगर वो आदमी जहन्नम में चला गया तो ये चीज़ें उसको कोई फ़ायदा देने वाली नहीं है। वो आखिरत में असल में बदनसीब होगा। तो एक मुझे इस एक रवायत याद आ रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि गरीब कौन है, गरीब कौन है। सहाबा ने कहा कि जिसके पास माल नहीं है वो गरीब है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, गरीब वो नहीं है। गरीब वो है कि कल क़यामत के दिन एक पहाड़ के बराबर उसके पास नेकियां होंगी, उसकी नेकियां, उनका कोई शुमार नहीं होगा। वो जब हिसाब किताब के लिए अल्लाह के सामने हाजिर होगा तो वो एक आदमी आएगा, वो कहेगा कि या अल्लाह इसने मेरा फलां हक मारा था। तो अल्लाह ताला कहेंगे कि अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो, ये थोड़ी सी नेकियां इसकी यहाँ से ले जाओ, तो ये तुम्हारे उस नाइंसाफ़ी का बदला हो जाएगा। तो फिर वो ठीक है, वो कुछ थोड़ी सी नेकियां ले जाएगा। फिर कोई और आदमी आएगा, वो कहेगा या अल्लाह इसने मेरा मेरी ज़मीन मेरी जायदाद गस्ब की थी। अल्लाह ताला कहेंगे ठीक है, तुम इसकी कुछ नेकियां ले जाओ। फिर एक और आदमी आएगा, वो कहेगा कि या अल्लाह इसने मुझे गालियां दी थी, मेरी मेरी गीबत की थी। तो अल्लाह ताला कहेंगे कि ठीक है, तुम इसका ये थोड़ी सी नेकियां तुम इसकी ले जाओ। और एक और आदमी आएगा, वो कहेगा कि ये चीज़ें मैं गिनवा रहा हूँ अपनी तरफ से कि इंसान कैसी कैसी, एक नेक इंसान जो बज़ाहिर नेक अपने आप को समझता है और नेक लगता है हमें, वो गलतियाँ कैसी कैसी करता है। आप देखें, इंतहाई नमाजी परहेजी बंदे गीबत नहीं छोड़ते। इंतहाई नमाजी परहेजी बंदे लोगों की जायदादें गजब कर लेते हैं, विरासत में हिस्से नहीं देते। ठीक है, लोगों को खामखा तंग करते हैं, कारोबार में दो नंबरी करते हैं, कारोबार में धोखाधड़ी करते हैं। तो लोग आते जाएंगे, कहेंगे या अल्लाह इसने मेरे से ये फला धोखा किया था, इसने मुझसे झूठ बोला था, इसने मुझे गाली दी थी। तो अल्लाह ताला उससे कहेंगे कि ठीक है, इसकी नेकियां ले जाओ, नेकियां ले जाओ। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो उसकी नेकियों का पहाड़ ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा।
तो अल्लाह अल्लाह ताला अब लोग आना बस नहीं होंगे, लोग आते जाएंगे। अब नेकियां तो खत्म हो गई, अब कैसे हिसाब बराबर किया जाएगा? अल्लाह आदमी आएगा, वो कहेगा कि अल्लाह इसने मेरा फलां हक मारा था। अल्लाह ताला कहेंगे अच्छा अब नेकियां तो इसकी है नहीं, ऐसा करो तुम अपने कुछ गुनाह इसके हिस्से में डाल जाओ। तो अब वो उस नेकियों का पहाड़ तो खत्म हो गया, अब गुनाहों का पहाड़ बनना शुरू हो जाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि असल गरीब वो है कि जो नेकियों का पहाड़ लेके अल्लाह के पास हाजिर होगा, लेकिन लोगों का इतना हक मारा होगा, इतना हक मारा होगा कि नेकियों के पहाड़ के बदले गुनाहों का पहाड़ लेके वो जहन्नम में चला जाएगा। तो ये असल असल जो कामयाबी और नाकामी के दारोमदार है वो आखिरत है। तो हमें इस बात से कभी खुश नहीं होना चाहिए कि हम इतने ज़्यादा नेक परहेजगार बन गए हैं, इतने ज़्यादा नमाजी और परहेज़ी बन गए हैं। बल्कि कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि किसी से किसी का कोई हक ना मारें, किसी से झूठ ना बोलें, किसी की गीबत ना करें, किसी को धोखा ना दें, किसी की ज़मीन जायदाद, किसी का एक रुपया तक ना उसके इसकी इजाज़त के बगैर ना खाएं, एक रुपया तक ना लें। कल क़यामत के दिन ये बहुत मुश्किल होगा इसका हिसाब देना। हज़रत मूसा और फ़िरौन का तज़किरा बयान किया गया, इसके बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं। मखज़ूब कौमों पर इतने सारे वाक़यात बयान करने के बाद गुज़िश्ता कौमों के, उन पर अल्लाह ताला ने एक तबसरा किया है। ठीक है, अब वो तबसरा अल्लाह ताला ने जो किया है वो पढ़ने के काबिल है, वो देखने के काबिल है कि उसमें अल्लाह ताला हमें सबक क्या देना चाहते हैं। तो सबक अल्लाह ताला क्या देना चाहते हैं वो हम देखते हैं, आयत नंबर 100 से है। ज़ालिका मिन अंबाइल क़ुरा नक़ुस्सुहु अलैका मिन्हा क़ाइम व हसीद। ये कुछ बस्तियों वाले थे जिनका तज़किरा हमने आपके सामने पेश किया। वमा ज़लमनाहुम, हमने उन पर कोई जुल्म नहीं किया, उनको अजाब दे के। वलाकिन ज़लमु अनफुसहुम, वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करने वाले थे। हमने उनके साथ कोई ज्यादती नहीं की, वो खुद अपने ये जो उन पे अजाब आया, उन्होंने खुद अपने साथ ज्यादती की है। तो अब अगर हाँ आज दुनिया में मुसलमान अगर पिस रहे हैं, मुसलमान अगर जलील हो रहे हैं, जलील ख्वार हो रहे हैं, तो यकीन करें अल्लाह ताला का कोई इसमें नुकसान नहीं, अल्लाह ताला का कोई हमारे ऊपर जुल्म नहीं है। ये हमारे आमाल का, हमारे किरदार का नतीजा है। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला का तबसरा है। ये सबक है जो पुरानी कौमों का हमें दिया गया। तो जब तक किसी कौम में किसी कौम में इस्लाह करना, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की जो सिफ्त है वो मौजूद होती है, तो अल्लाह ताला उस कौम को अजाब नहीं देते। ये बात याद रखने की है। आज हमने यही काम तो छोड़ दिया है, इसी वजह से अल्लाह ताला हमें जलील और रुसवा कर रहे हैं हर जगह। तो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का काम पकड़ें, अल्लाह ताला हम हमारे ऊपर से अजाब को उठा लेंगे। मुश्किल हालात में अहले ईमान के लिए जो हिदायत दी गई हैं वो क्या हैं कि हक पर डटे रहो, मुखालफत के रद्द अमल में भी हक का दामन हाथ से ना छोड़ो, काफिरों की तरफ से कोई समझौता कबूल ना करो। समझौता मतलब दीन के मामले में कोई समझौता कबूल ना करो। ठीक है, ऐसा समझौता ना करो कि जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने करने की कोशिश की थी कि कुछ टाइम आप हमारे खुदाओं की इबादत कर लें, कुछ टाइम हम आपके खुदा की इबादत कर लेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर कट जवाब दे दिया था कि लकुम दीन हुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। नमाज की पाबंदी करो, सगीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचते रहोगे। तो अल्लाह ताला सगीरा गुनाहों से माफ़ी का ज़रिया बना देंगे, सगीरा गुनाहों को माफ़ कर देंगे। तो ये कबीरा गुनाहों से बचना चाहिए, ये हमारे सगीरा गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बन जाएंगे। और सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों का अजर कभी ज़ाया नहीं करता। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, सब्र का फल कभी कड़वा नहीं होता। आज हम यहीं तक ही पढ़ते हैं। सूरह यूसुफ जो 12वें पारे के आखिर से शुरू होती है और फिर 13वें पारे में भी मौजूद है। क्योंकि सारा वाक़या एक साथ मैं बयान करना चाहता हूँ, तो इंशाल्लाह हम कल इसको देखेंगे। आज की हमारी नशिस्त ये मुख्तसर सी थी, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है किसी का?
चले ठीक है, इंशाल्लाह मैं ज़रा आपकी अटेंडेंस नोट कर लूँ। अभी किसी ने लीव नहीं करना। जी ठीक है। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।